Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, class 7th. Welcome back in your mathematics class. Your new session, session 10 of chapter application of percentage. In previous video, we discussed about the worksheet 5, first question, second, third, fourth, fifth. Now we discuss question number 6 to 10. What is our question number 6? That is, at what rate percentage we find out the R per annum will a sum of money double itself. Sum of money, let the principal is x and amount is double, that is 2x itself in 8 years. Time is given is 8 years. Now we find out the rate of interest. Now first of all we find the simple interest. How do we find the simple interest? That formula to find the simple interest is amount minus principal. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था 2x minus x, that is x. 2x में से 1x जाएंगे, 1x आएंगे. Now we find the rate of interest R. What is the formula to find out the interest? Rate of interest SI into 100 upon P into T. What is SI? That is x into 100. P is x and time is 8. X to x cancel. 4 2 जा 4 25 जा. Now make it in proper form. ये proper form है. Whole form में लिखिए जैसे 12 whole 1/2%. That is our answer. Is it clear, my dear? Now our next question, question number 7. Again, 7th question. Rahul borrowed rupees 50,000 from a bank. बैंक से उसने 50,000 रुपये लिया. That is the principal is given. That is 50,000. Rupees 50,000 from a bank on March 2014 and paid rupees 53,150. That is amount 53,150 at time 1 March to 6 अक्टूबर. तो बेटे मार्च से अक्टूबर तक की डेट गिन लीजिए कितनी हो जाएगी. 1 मार्च. मार्च में कितने डेज होते हैं? दैट इज 31. तो 30 डेज तो मार्च के हो गए प्लस. जब भी डेज का हिसाब होगा डेटें दे रखी होंगी तो आपने ऐसे लगना. मार्च के बाद क्या था? दैट इज अप्रैल. सो अप्रैल में कितने डेज होंगे? दैट इज 30. नाउ मई. मई इज 31. जून दैट इज 30. जुलाई दैट इज 31. उसके बाद अगस्त इज आल्सो 31. सितंबर दैट इज 30. नाउ अगस्त अक्टूबर. अक्टूबर से 6 डे तक ऐसे 6 अक्टूबर तक तो 6 डे अक्टूबर के काउंट होंगे. नाउ प्लस इट 30 आप इसे प्लस कर लीजिए. 30 30 31 30 और 31 30 दैट इज 30. 60 60 120 120 और 60 180 180 182 और 60 2 4 242 243 और 6 दैट इज 249 days. Is it clear? Again I am saying that is in upper that is in started with March 1, April, May, June, July, August, September, October. Now plus again 30 30 40 60 60 60 120 120 और 30 180 182 182 और 60 that is 241 242 and 7 again 249. That is 249 days. Now we find out the simple interest. First of all, what is the formula to find amount minus principal? Amount is given, then 53,150 and principal is 50,000. Now 3,150. Now we find out the what is we found rate of interest R. What is the formula to find out? Simple interest into 100 upon P into T. Simple interest is 3150 into 100 upon P 5,000. Now timing here is in days, we convert into years, so we divided by 365 because in 1 year how many days? There is 365 days. 249 into 365. Now solve it. इसे बेटा सोल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा. Is it clear my dear? आप इसे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा. Is it clear? Now yes, 8th question, most important question. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन. ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये सारे. नाउ व्हाट इज 8th क्वेश्चन?
in that what time? Here time is find out. Will sum of money double itself? So principal is x, then amount is again double. उससे किस सम का अमाउंट डबल हो जाएगा अपने आप में, तो तभी हम प्रिंसिपल को एक्स सेलेक्ट करेंगे. ट्रिपल कहेगा तो 3x ले लेंगे अमाउंट. ठीक है, जितना भी टाइम्स कहेगा उतना लेंगे. इट सेल्फ एट द 15% पर एनम. हियर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, दैट इज r इज 15%. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट अगेन सिंपल इंटरेस्ट, amount minus principal, amount to x, principal x, that is x. Now we find the time. How we find the time? Simple interest into 100 upon p into r. Simple interest is x into 100, p is x and r is 15. X to x cancel, 5 3 जा 5, 20 जा 20 upon 3, इसे होल में लिखेंगे बेटे 6 और 2 upon 3%. Sorry, here. Is it clear? ठीक है बेटे, आज में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 9th क्वेश्चन. In what time will the simple interest on rupees 400 at 10% per annum will be the same as the simple interest on 1000 4 years at 4% annum? कितने टाइम में 400 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से उतना ही होगा जितना 1000 रुपीज का 4 साल का 4% के हिसाब से. तो पहले हम 1000 रुपए का 4 साल का 4% से क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वही सिंपल इंटरेस्ट उसका है 400 रुपए का. तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल in first case we find out the simple interest on 1000, then principal into r into t upon 100. Here principal is given 1000, rate of interest is also given, that is 4%, and time is also given 4 upon 100. Cancel out 4 4 the 16, 10 the 160. So it is a simple interest on 1000. Now this simple interest is same on 160 rupees. That is, now principal is given is 400 and time is we find out, and rate of interest is 10%. Now we find out the time. What is the formula to find out the time? Time is equal to simple interest is 100 upon p into r. Simple interest is equal to 160 into 100, p is equal to 400 and time is 10. 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 4 for the, therefore 4 years, 4 साल का. Is it clear? पहले हमने 1000 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 160 रुपीज आया 4% के हिसाब से 4 इयर्स का. उसने कहा यही सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपीज का भी है, क्योंकि सेम कहा उसने, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट 160 रख दिया. ठीक है, प्रिंसिपल उसने दे रखा था 400 में, टाइमिंग उसने पूछी है वैसे, व्हाट इज द टाइमिंग, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. नाउ वी फाइंड आउट द टाइम, दैट इज द फार्मूला SI into 100 upon P into R. ठीक, SI is we find out 160, 100, principal is given 400 and time is 10, R is 10. Now solid, there is a 4 year. Is it clear my dear? Now our next question. Now come on the next question, that is 10th most important question. What is 10th question? Yes, Mr. Jain donates 1 lakh rupees to the school and interest to be used for the adding new 5 scholarship to equal value. If the value of each scholarship is rupees 1500, find the rate of interest. बेटा उसके पास 1 लाख रुपया था, उन्होंने स्कूल को डोनेट कर दिया. स्कूल वालों ने क्या किया, जो पैसे से इंटरेस्ट आता था वो 5 स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती थी. ठीक है, और हर बच्चे की स्कॉलरशिप अगर 1500 रुपये थी, ठीक है, तो उसने कहा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था हमें ये बताना है. इज इट क्लियर? तो बेटे 5 बच्चों को दिया, दैट इज इंटरेस्ट इज, टोटल इंटरेस्ट कितना आया होगा उसके पास में, एक बच्चे का 1500, 5 का 7500, ये इंटरेस्ट आया होगा यहाँ पर. ठीक है, तो पी प्रिंसिपल मुझे पता है 1 लाख रुपीज था. इज इट क्लियर? दिस इज द प्रिंसिपल, इट इज फॉर 1 ईयर, क्योंकि पर एनम दिया जाता था, तो टाइम इज गिवन, दैट इज 1 ईयर. नाउ यू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर. Now to find the rate of interest, what is the formula to find out the rate of interest? That is SI into 100 upon principal into time. SI is 7500 into 100 upon principal is 1 lakh and time is 1 year. Solid 20, therefore 7.5 डिवाइड कर दिया मैंने 75 को 10 से,
7.5% पर एनम, ये उससे मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। Our first question, value based. That is first question. In a survey, it is found that out of 125 people in a park, total people कितने थे पार्क में? In park, that is 125. 12% job 12% ऑफ 125 का, तो इसका निकालेंगे 12 इंटू 125 अपॉन 100, 25 4 जा 25 5 जा 4 3 देयरफॉर 15 लोग पीपल्स जो थे वो जॉब कर रहे थे, ठीक है। एंड योगा 16%, इसके 16% टोटल के, तो 16% ऑफ 125। नाउ सॉलिड 16 इंटू 125 अपॉन 100, 25 5 जा 25 4 जा 4 4 जा, therefore 20 लोग जो थे वो योगा कर रहे थे एंड रेस्ट प्रिपेयर टू वॉक, बाकी जो थे वो वॉक कर रहे थे। तो उसने कहा ए पार्ट में फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉक, जो वॉक कर रहे थे, नंबर ऑफ पीपल कैसे निकालेंगे बेटे? वॉक टोटल में से इन दोनों को प्लस करके क्या कर दूंगा, माइनस, प्लस करूंगा 35, इसे माइनस करूंगा 0, 12 माइनस 3 9, दैट इज 19 लोग ऐसे थे जो वॉक कर रहे थे। वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग, हमारा शरीर फिट रह सकता है और भी बहुत है, ठीक है। वी आर हेल्दी, ठीक है, वी बिकम्स हेल्दी टू डूइंग योगा, जॉगिंग एंड योगा, कुछ भी लिख सकते हैं या आपने लिखना है, ठीक है। एक पॉइंट लिखना है, कोई सा भी एक पॉइंट लिख लेना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू डूइंग द योगा, योग और वॉकिंग इन अ मॉर्निंग और इवनिंग। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन। What is our second question? And a library teacher of the school keeps record at the student of each class about their reading habits. लाइब्रेरी की टीचर ने कि बच्चे 7th क्लास के कैसी हैबिट है उनकी रीड करने की, ये दे रखा है। द रिजल्ट ऑफ क्लास 7 का जो मंथ अप्रैल के मंथ का था, 0 बुक ऐसे कितने परसेंटेज थे बच्चे? 14%, जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी बिल्कुल भी, 1 से 3 बुक्स पढ़ी ऐसे 28% बच्चे थे, एंड 4 to 6 बुक्स पढ़ी ऐसे 26 थे, और मोर देन 6 ऐसे 32% बच्चे थे। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज ऑफ द क्लास 7 इज 500, अगर क्लास 7 में 500 टोटल स्टूडेंट है तो टोटल स्टूडेंट इज 500, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैड रीड बुक्स इन ए मंथ ऑफ अप्रैल, तो टोटल कितने बच्चों ने रीड करा बुक्स को, ये बताना। तो बेटे रीड ये वाले होंगे 1 से लेकर 6 तक, तो इन सबको प्लस कर लेंगे, तो टोटल परसेंट बैठेंगे कितने? 8 और 8 16, 1 और 3 और 3 6 7 8, 86% ने रीड करा। तो अब हम 86% किसका निकालेंगे, और 500 86 इंटू 500 अपॉन 100, नाउ सॉलिड 33 43 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बुक्स को रीड किया। इट इज क्लियर? 86% थे टोटल जिन्होंने रीड की थी, और हमने 500 का 86% रीड किया। इज इट क्लियर? एंड सेकंड पार्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू रीड, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, टू इंक्रीजिंग द नॉलेज, और हमें कई चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपने ये पॉइंट अपने आप लिखना है, ठीक है बेटे। सो योर दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इज फिनिश्ड। नाउ इन ब्रेन टीचर, जो क्वेश्चन मैं निशान लगा रहा हूँ बस वही आपने करने हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं करने। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड देयरफॉर 8th 9th 10th, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अगेन आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन इन ब्रेन टीचर क्वेश्चन नंबर 5 8th 9th 10th और एक और कर लेना, दैट इज 7th। देयर इज 7th क्वेश्चन। इज इट क्लियर? दिस इज फॉर योर होमवर्क, ऑल आर योर होमवर्क। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, चलो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, 1-2 क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा ब्रेन टीचर, और नया चैप्टर शुरू कर देंगे हम। इज इट क्लियर? टिल दैट थैंक यू वेरी मच माय डियर।